Good morning, students. Today we are going to read our chapter number 2, A Gift of Chappals, from our book Honeycomb. This is a story about the chappals and what happened with the chappals. What is the story behind it? We are going to read in this story. Mridu was a young girl. Once her grandmother, Tapi, uh, took her to her aunt Rukmani house. एक दिन मृदु जो है, इसमें कहानी है मृदु एक लड़की की, जो छोटी सी लड़की है, जो अपनी ग्रैंड मदर तापी के साथ अपनी आंटी रुक्मणी के घर जाती है. द आंट हैड 3 चिल्ड्रन, लाली, रावी एंड मीना. As soon as the aunt opened the door, Ravi and Meena came out. They pulled Mridu in. Mridu asked them to wait. She took off her shoes and put them nearly beside a pair of chappals there. These chappals were large and black. They were so covered with dust that they looked grey. जब जो मृदु है अपनी आंटी के घर जाती है, तो जो आंटी के बच्चे होते हैं तीनों मृदु को अपने अंदर खींच कर ले जाते हैं और मृदु अपनी चप्पल के जो पेयर होता है, चप्पल की जो जोड़ी होती है, उसे बाहर उतार देती है. अब क्योंकि उसकी चप्पल ब्लैक कलर की होती है और वो जो चल के आई होती है, तो धूल के कारण वो चप्पल ग्रे हो जाती है. मृदु हैड नो टाइम टू आस्क हू स्लीपर्स दे वर बिकॉज रावी ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. मृदु को ये पूछने का टाइम नहीं होता है कि वो चप्पल किसकी है जो बरामदे में पड़ी है. देयर ही शोड हर अ किटन बिहाइंड द थिक बिटर बैरी बुश. तभी उसे एक किटन यानी बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है एक बेर की झाड़ी के पीछे. It lay in a torn football lined with sacking and filled with sand. Meena told Mridu that the elders did not like any kitten, so it was a secret between the children. मृदु जो बच्चे को देखती है, किटन के बिल्ली के बच्चे को देखती है, जो कि एक फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है, लेकिन झाड़ियों में वो फंसा हुआ होता है. और मृदु के जो भाई बहन होते हैं वो उसको ये बताते हैं कि क्योंकि घर में बड़ों को बिल्ली पसंद नहीं है, इसलिए वो इनको अंदर नहीं ले जा सकते. ये उसके और उनके बीच का सीक्रेट है. Ravi was much excited. He told Mridu how he was able to manage some milk from the kitchen party and seen him with a glass of milk. Ravi made an excuse. He took a glass of milk. He said that he was hungry. Party had asked him to drink and give the empty tumbler back to her for washing. He somehow sent her away, saying that he would himself wash the tumbler. Then he ran to put the milk into the coconut shell from which the kitten could drink it. जो रवि होता है वो मृदु को बताता है कि कैसे उसने बिल्ली के बच्चे के लिए रसोई से दूध लेकर आया, क्योंकि पार्टी को जो दादी थी उनकी, उसको साउथ इंडियन जो होते हैं वो दादी नानी को पार्टी बोलते हैं. तो पार्टी ने जो दूध का गिलास उसके हाथ में देखा, तो रवि ने ये बहाना बना लिया कि उसे दूध पीना था क्योंकि उसे भूख लगी थी. तो पार्टी ने उससे कहा कि वह दूध पीकर खाली गिलास उसे धोने के लिए वापस दे दे. उसने किसी तरह से ये कहकर उसे वहाँ से भेज दिया कि वह गिलास खुद ही धो लेगा. फिर वो भाग कर क्या करता है, दूध को नारियल के टुकड़े में डालकर आता है जहाँ पे वो बिल्ली का बच्चा उसे पी सकता है. Ravi said that the kitten full name was Mahendra Varma Pallav Punai, MP Punai for short. Seeing Mridu impressed, Ravi began to speak very high of his kitten. He told her that the cat or kitten was the enable of the ancient Pallava kings. At this, Mridu began to laugh. Ravi बोलता है कि बिल्ली के बच्चे का पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है और इसे हम शॉर्ट में एमपी पुन्नई बोलते हैं. मृदु ये कहता है कि जो रवि बताता है मृदु को कि बच्चे के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताता है बिल्ली के, कि वो बताता है कि बिल्ली का बच्चा है ना, जो पुराने जो राजा थे, पल्लव राजा थे, उनकी फैमिली से है. और इस बात पर जो मृदु है वो हंसने लगती है. बट रवि वॉज नॉट द वन to give way. He argued that everyone knows that lions and cats are close relatives, and he said he was sure his Mahendran was a descendant of Mahabalipuram Rishi cat. He reminded Mridu that the people in ancient Egypt worshipped cats. Seeing that Mridu remained unconvinced, Ravi spoke with more passion. Egyptians, he said, worshipped cat goddess Bastet. One of the descendants of Bastet was hidden in a Pallava ship. It thus came to Mahabalipuram. MP Mahendram, he insisted, was a descendant of that very cat. Ravi was so pleased that with his own argument that he cried loudly with pleasure. अब रवि क्या होता है, मृदु को और भी चीज़ें बताता है बिल्ली के बारे में, और मृदु को क्योंकि विश्वास नहीं होता है तो रवि उसको और है ना आर्ग्यूज करने लगता है. रवि उसके साथ बताता है कि शेर और बिल्ली जो होते हैं पास के क्लोज के रिश्तेदार होते हैं. बोलता है कि
ये पक्का महेंद्र बलीपुरम से ही उसका ही जो है डिसेंडेंट है, मतलब हम बोलते हैं वंशज है, ठीक है। और वो मृदु को बताता है कि पहले जो मिस्र के लोग होते थे ना, बिल्ली की पूजा करते थे, और ये जो बिल्ली का बच्चा है ये भी उन बिल्लियों में से एक है, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो मृदु से करता है। एट द सेम टाइम देयर वाज अ क्रीचिंग साउंड, दिस साउंड फ्राइटेंड द किटन, ही जंप्ड अप एंड ran towards a bamboo tray of red chilies, he tipped a few chilies over himself and howled miserably। तभी वहाँ से एक क्रीच क्रीच की आवाज़ आती है। क्रीच का मतलब है जब बिल्ली के पंजे कुछ खुरचते हैं ना, तो ऐसी क्रीच क्रीच की आवाज़ सी आती है, तो पता लगता है कि ये कमरे से आ रही है। उन्हें लगता है बिल्ली का बच्चा कर रहा है, लेकिन ये कमरे से आ रही होती है, अजीब सी कानों को चुभने वाली आवाज़। तभी उनको पता चलता है कि वहाँ पर एक लल्ली नाम की एक लड़की है जो वायलिन बजाना सीख रही है। तो रवि बताता है कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं बहुत तेज़ी से जो है वो लल्ली को पढ़ाते हैं, पर लल्ली को कुछ समझ नहीं आता, और जब भी वो वायलिन बजाती है बेचारी बजा ही नहीं पाती, और है ना उसी में सिर्फ क्रीच क्रीच की आवाज़ आती है, ऐसा वो उसको बताता है।